students. Today I have started the chapter number 7, P block element, right? So first, group 15 element, right? So in P block element there are 6 group, right? 13, 14, 15, 16, 17 and 18, right? तो ये चैप्टर में हमें 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, right? So first group 15 element, right? So it states the general electronic configuration of P block element and which factor largely governs the properties of a P block. So the general configuration of P block element is NS2 NC1 to 6, right? Except helium, because electronic configuration of helium is 1s2, right? In helium only 2 electrons are present, right? The properties of P block element are influenced by first atomic size, second ionization enthalpy, third electron gain enthalpy, fourth electronegativity, fifth absence of d orbital in a second period element and presence of d or d and f ऑर्बिटल्स इन अ हेवियर एटम, राइट? मतलब कि जो हेवियर एलिमेंट है उसमें या तो डी एलिमेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है या तो फिर डी और एफ दोनों ऑर्बिटल प्रेजेंट है, राइट? द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मेटल, मेटालॉइड मतलब कि सेमी मेटल एंड नॉन मेटल ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशन इन केमिस्ट्री ऑफ these elements, right? Next, explain occurrence of an element of a group 15 element, right? So first nitrogen, then second phosphorus, right? Nitrogen तो के molecule nitrogen comprise 78%, right, by a volume of a atmosphere. In the earth crust, it occurs as a sodium nitrate, NaNO3 called chili saltpeter, potassium nitrate, KNO3 Indian saltpeter, right? It is found in the form of a protein in plants and animals. Second, phosphorus. Phosphorus occurs in a minerals of a apatite family. Apatite family मतलब कि Ca3, PO46, CaH2, right? Where X is equal to fluorine, chlorine and hydroxyl, right? If F is equal to fluorine is called fluoroapatite, chlorine is called chloropatite and OH group present is called a hydroxyapatite, right? Which are main compounds of phosphate rocks, right? Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as in a living cell. Phosphoprotein are present in a milk and eggs, right? Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as a sulfide minerals, right? मॉस्कोवियम मतलब कि Mc, राइट, न्यू एलिमेंट है वो, इज सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 289 एंड वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड, राइट? एंड ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड इट्स अवेलेबल इन वेरी लिटल अमाउंट, राइट? वो बहुत ही लिटल अमाउंट में प्रेजेंट है एंड ड्यू टू दिस रीजन उसकी डिस्कवरी के बारे में हम लोग अभी कुछ पता नहीं चल सकता, राइट? हमें नेक्स्ट state the electronic configuration of group 15 element, right? तो 15 ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे दी हुई है नाइट्रोजन की, देन सब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, राइट, एंटीमनी, bismuth and moscovium, right? And all the element of group 15 have a 5 electron in valence shell. C 3s2 2s2 2p3, 3s2 3p3, right? तो 4s2 3p3, 5s2 3p3, सब में outermost orbital में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबकी, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट? तो एक बार उसको रीड कर लेना अच्छे से, राइट? And hence the general electronic configuration is NS2 and P3, right? Second period है तो 2s2 2p3, fourth period है तो 4s2 4p3, sixth period है तो 6s2 6p3, right? जो period है वो क्या indicate करता है? outermost electronic configuration, right? Next discuss the variation in atomic and ionic radius of elements in group 15. The atomic radius of the group of the element of group 15 are smaller as compared to the element of group 14, right? मतलब कि उस ग्रुप 14 उससे पहले का जो ग्रुप था उसकी कंपेयर में इसकी आयोनिक रेडियस क्या है? लेस है, राइट? Why? Because when we move left to right in period, atomic number increase and
रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट. एंड डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज of addition of a new principal cell, right, and each succeeding element, right. The increasing in a covalent radius is more significant, right, from nitrogen to phosphorus, and however there is a small increase in radius from arsenic to bismuth, right, because of presence of completely filled d or f orbitals in a heavier members, right. heavier element में d और f ब्लॉक ऑर्बिटल्स है वो completely फुलफिल हो सकती है, राइट, इलेक्ट्रॉन से. एंड ड्यू टू दिस रीजन उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, स्मॉलर इंक्रीज होगी, राइट. देयर इज अ स्मॉलर इंक्रीज इन अ रेडियस. Next, discuss the trend in ionization enthalpy and electronegativity. So, we know that कि when we move up to down in period, atomic number increase होगा, right? And due to this reason, atomic radius भी increase होगा. तो atomic radius increase होगा, atomic number increase होगा, और उसकी जो ionization enthalpy और electronegativity है वो क्या होगी, decrease होगी, right? अब ionization enthalpy की बात की है तो डेल्टा H1, H2 एंड H3, राइट. तो मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका सीक्वेंस दिया हुआ है कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिक्वायर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H1, राइट. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस है कंपेयर टू सेकंड इलेक्ट्रॉन, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उससे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट. नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 15. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विथ एटॉमिक साइज इंक्रीज, राइट. एंड हाउएवर among the heavier element the difference is not much pronounced, right. मतलब कि जैसे जैसे हैवी एटम होगी, राइट, तो उसमें वो डिफरेंस हमें ज्यादा नहीं दिखेगा, राइट. नेक्स्ट, डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15, राइट. तो एटोमिसिटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड एलोट्रोप्स, राइट. तो एटोमिसिटी तो क्या, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन, राइट, वो सब एलिमेंट क्या है तो क्या पोली एटॉमिक है, राइट. एंड नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक मीन्स N2 form, and while all others are solid and nitrogen is in a gaseous state, right. The nitrogen exists as a diatomic gaseous molecule because of ability to form a p-pi multi-bond bond, right. मतलब कि N double bond N या N triple bond N, right. While other element exist as a discrete tetrahedral triatomic molecule, right, due to repulsion of a non-bonding electron pair. मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल. जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब कि जो ऊपर की जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, नॉन मेटल, देन सेमी मेटल एंड लास्ट में मेटल, राइट. तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर मेटल, arsenic and antimony metalloids, while bismuth is metal, right. The metallic character increase down the group, right, because of increase in atomic size and decreasing in ionization enthalpy, right. Melting and boiling point. So the melting point first increase up to arsenic, right, and then decrease up to bismuth. This is because of inert pair effect due to which antimony and bismuth forms 3 covalent bond, right, instead of 5, right, and due to which intra-atomic attraction decrease. उसकी वजह से उसके बीच का जो attraction है वो decrease होगा, right. The boiling point of the element decrease regularly down the group. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, राइट, अप टू डाउन, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट. नेक्स्ट, एलोट्रॉपी. तो क्या, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी, राइट, मतलब कि सब में एलोट्रॉप्स है, राइट, लेकिन नाइट्रोजन में नहीं है, ओके. नेक्स्ट, राइट द नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट. तो ग्रुप 15 एलिमेंट की 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3, +3 एंड +5, राइट. एंड द टेंडेंसी ऑफ एक्सिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो अप टू डाउन जैसे जैसे ग्रुप में जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज होगा, राइट. और नीचे हम लोग जब बिस्मथ तक पहुंचेंगे उस तक हमें -3 रेयरली ही देखने को मिलेगा, राइट. वैसे ही द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जाएंगे, राइट. तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, तो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट.
The only compound known of bismuth in a 5 oxidation state is BiF5, right? मतलब कि बिस्मथ का only one compound ऐसा है जिसमें बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना मिलेगा +5, right? नाइट्रोजन एक्सिबिट +2, +1, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, right? Apart from +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, right? मतलब कि नाइट्रोजन में +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेंगे व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट? व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, राइट? देन नाइट्रोजन में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है, राइट? व्हाई नहीं है? बिकॉज उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, राइट? Nitrogen in all oxidation states from 1 to 4 disproportionated in an acidic medium, right? For example, 3HNO2 gives HNO3 plus H2O plus 2NO, right? और वो सब में उसकी oxidation state हमें दिया हुआ है +3, +5 and +2, right? Phosphorus so +1 to +4 oxidation state in a some oxoacid, right? Phosphorus disproportionated in all the intermediate state, right? From -3 to +5 in an acidic or alkali medium. तो उसका भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है H3PO2 gives H3PO4 और PH3, वो सब में भी ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने कैलकुलेट किया है, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने 11th में चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, राइट? Arsenic, antimony and bismuth in +3 oxidation state are stable with respect to disproportionation, right? तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, और बाजू में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हुए हैं कि नाइट्रोजन के -3 to +5, फॉस्फोरस में -3 +3 +5, आर्सेनिक -3 +3 +5, देन एंटीमनी +3 +5 एंड बिस्मथ +3, राइट? तो अप टू डाउन -3 कैरेक्टर देखो यहाँ से नीचे नहीं है, देन +5 भी लास्ट में नहीं है, लास्ट में कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट? नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ अ ग्रुप 15 एलिमेंट. तो कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, राइट? Since only 4 orbitals, right? नाइट्रोजन में outermost orbital में only 4 ऑर्बिट है, 1 2s ऑर्बिट एंड 3 2p ऑर्बिट, राइट? तो टोटल 4 ऑर्बिट्स है, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, राइट? बाकी के जो एलिमेंट है, राइट, उसकी outermost ऑर्बिटल में 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. कैसे 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट है? तो s ऑर्बिटल 1, then p ऑर्बिटल 3 एंड d ऑर्बिटल 5, टोटल कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गई? 9, राइट? तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल PCl5, PCl6, PF6 वैसे, राइट? देन नाइट्रोजन फॉर्म्स p5p5 बॉन्ड, राइट, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, एंड नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म d5d5 बॉन्ड, राइट? नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो वो d5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, सी, राइट? और अदर जो एलिमेंट है वो p5p5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, राइट? एंड फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एग्जिस्ट एज अ p4, as4, sp4 रिस्पेक्टिवली, राइट? एज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, राइट? देन वो और बाकी के जो एलिमेंट है, राइट, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, वो d5d5 बॉन्ड फॉर्म करते हैं. उसके एग्जांपल दिए हुए हैं R3P डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड CH2, राइट? तो यहाँ पे ये R है, R इज इक्वल टू वॉट? तो कि अल्काइल ग्रुप, राइट? देन वो लिगेंड के साथ भी अटैच हो सकते हैं, राइट? फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक फॉर्म्स d5d5 बॉन्ड्स विद ट्रांजिशन मेटल, राइट? ट्रांजिशन मेटल मीन्स व्हाट? तो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, राइट? तो वो ट्रांजिशन मेटल के साथ भी अटैच हो सकते हैं विद दैट कंपाउंड एक्ट एज अ लिगेंड. तो उस टाइम पे वो लिगेंड, उसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं, राइट? मतलब कि ये C2H5 है, राइट? तो ये लिगेंड है और ये लिगेंड मेटल के साथ अटैच होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी. इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग 9th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट? डिस्कस द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन ग्रुप के अदर एलिमेंट से अलग है, राइट? तो
तो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू किसके लिए, तो कि स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, राइट। तो फर्स्ट इज कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक, राइट, एंड गैसियस फॉर्म में, राइट। बाकी के जो है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, राइट। देन सेकंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है वो पी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, राइट। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, राइट। Catenation tendency is weaker in a nitrogen, right? As NN bond is weaker because of a strong inter-electronic repulsion, and hence nitrogen bond is weaker. जो nitrogen bond है वो bond क्या है, weaker है compared to phosphorus bond, right? And phosphorus catenation maximum in group 15. Nitrogen cannot expand its covalent bond, right? 4 because of absence of a d orbital. इसके बारे में भी हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, राइट। एंड बाकी के जो एटम है, राइट, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5, राइट। देन नाइट्रोजन कैन नॉट डी पाई बॉन्ड, राइट, लाइक अदर एलिमेंट। उसके बारे में भी हम लोगों ने आगे बोला, फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लिया था कि वो लिगेंड फॉर्म कर सकते हैं, उसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं। और नाइट्रोजन इज नॉट ऑब्जर्व, राइट, तो ये चीज नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता है। और ये जो लिगेंड है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, राइट। देन ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, राइट, जो नाइट्रोजन के जो ट्राइहेलाइड है, राइट, एक्सेप्ट NF3 आर अनस्टेबल, मतलब कि NF3 स्टेबल है, बाकी के सब ट्राइहेलाइड अनस्टेबल है, राइट। वाइल अदर एलिमेंट के जो ट्राइहेलाइड है वो सब क्या है, स्टेबल फॉर्म में, राइट। एंड लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या है, मोनोमेरिक है, राइट, बट ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट, और वो क्या है, डायमरिक फॉर्म में, मतलब कि वो डायमर फॉर्म करते हैं जब नाइट्रोजन डायमर फॉर्म नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हाइड्राइड कंपाउंड, मतलब कि व्हेन 15 ग्रुप एलिमेंट अटैच विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड, राइट। तो हाइड्राइड में यहाँ पे उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ दी हुई है, थर्मल स्टेबिलिटी दी हुई है, राइट। तो ये जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है वो कौन से हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, तो वो सब ट्राइहेलाइड फॉर्म करेंगे, EH3, व्हेन E इज इक्वल टू 15 ग्रुप के एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में मूव होंगे अप टू डाउन, राइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब कि नाइट्रोजन के हैलाइड है, जो हाइड्राइड है वो स्टेबल फॉर्म में होंगे और बिस्मथ के जो हैलाइड है वो थोड़े अनस्टेबल होंगे, राइट। और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी दी हुई है हमें कि नाइट्रोजन से हम लोग बिस्मथ के हाइड्राइड से मूव होंगे, राइट, तो उसकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो स्टेबल कौन होंगे, नाइट्रोजन के हाइड्राइड, राइट, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, बिस्मथ के हाइड्राइड की, मतलब कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, राइट। एंड थर्ड, एमोनिया इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल बिस्मथ Bi हैलाइड, राइट, Bi हाइड्राइड, मतलब कि बिस्मथ हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे बेसिसिटी डिक्रीज होगी। BiH3 है वो लीस्ट बेसिक होगा, while NH3 is the most basic होगा, right। The high basicity of NH3 is due to, NH3 की basicity high क्यों है, because of high electronegativity and smaller size of nitrogen। Then basicity के ऑर्डर भी दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, right, और बिस्मथ की सबसे लेस है। Then ammonia exhibit hydrogen bond, right, both in a solid and liquid state। जो ammonia है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज अ हायर एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट, देन दैट ऑफ अ PH3, राइट। वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसके लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, राइट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ओनली उसकी PH3 से कंपेयर किया है, राइट। सबसे ज्यादा तो नहीं है, सबसे ज्यादा किसके, बिस्मथ के, देन एंटीमनी, देन एमोनिया, देन आर्सेनिक एंड लास्ट है फॉस्फोरस हाइड्राइड, राइट। तो ये थे हाइड्राइड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड, राइट। तो कौन से ऑक्सो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वो
ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड फॉर्म करते हैं एंड द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज अ मोर एसिडिक। मतलब कि जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उसमें जो ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ऑक्साइड कौन से फॉर्म में होंगे? एसिडिक फॉर्म में, राइट। द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। मतलब कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी के एम्फोरेरिक है। मतलब कि एसिड और बेस दोनों, एंड जो बिस्मथ है उसके ऑक्साइड क्या है? बेसिक है, राइट। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइऑक्साइड एंड पेंटॉक्साइड डिक्रीज with the decreasing in the electronegativity of a central atom, right। मतलब कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा, राइट। किस में? क्योंकि ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड में, राइट। तो यहाँ पे देखो ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, राइट। कि नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड क्या है? सबसे हाई है, देन फॉस्फोरस एंड लास्ट में आर्सेनिक है, राइट। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन अ हैलाइड कंपाउंड, राइट। हैलाइड के बारे में हम लोगों को लिखना है, तो कौन सा हैलाइड फॉर्म करेंगे? तो क्या ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। द पेंटाहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट नोन, राइट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ डी ऑर्बिटल। मतलब कि वो ट्राइहैलाइड फॉर्म करेंगे, राइट। पेंटाहैलाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पेंटाहैलाइड ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट वाइल इन ट्राइहैलाइड। मतलब कि जो पेंटाहैलाइड है उसमें उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? +5, और ट्राइहैलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3, राइट। सिंस एलिमेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव अ मोर पोलराइज। मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है वो ज्यादा पोलराइज है कंपेयर टू +3, राइट। And the covalent character of bond is more in a pentahalide. Pentahalide में covalent character ज्यादा है। The trivalent halide except BiF3, right? BiF3 के अलावा बाकी के सब covalent है, तो BiF3 क्या है? क्योंकि वो आयनिक है। All the trihalide of this element except those of nitrogen. नाइट्रोजन के हैलाइड के अलावा बाकी के सब क्या है? स्टेबल फॉर्म में है। And amongst the trihalide of nitrogen ओनली NF3। नाइट्रोजन के जो हैलाइड के बारे में बात की थी कि वो अनस्टेबल है, राइट। बाकी के सबके ट्राइहैलाइड स्टेबल है, तो नाइट्रोजन में भी ओनली एक हैलाइड NiF3 ही स्टेबल है, राइट। मतलब कि NCr3, NBr3 वो सब कौन से फॉर्म में होंगे? अनस्टेबल फॉर्म में होंगे, राइट। एंड लास्ट, डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विथ मेटल। तो ग्रुप 15 एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटालॉइड फॉर्म करेंगे, राइट। सॉरी, नॉट मेटालाइड, मेटालॉइड तो सेमी मेटल हो गए, राइट। जब वो मेटल के साथ फॉर्म होंगे ना तो मेटालिक कंपाउंड फॉर्म होंगे, राइट। ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड, राइट। और वो सब में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3 होगा, राइट। सच हैज अ कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, राइट। तो ये सब था ग्रुप 15 के एलिमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन की हमने, राइट। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। जैसे डाइनाइट्रोजन है, एमोनिया है, राइट। ओके, थैंक यू।